इसे चिढ़ तो नहीं होती? तो 90% अब की बार आ जाएंगे या ज़्यादा? 90 से ज़्यादा ही आएंगे। 90 से ज़्यादा। और इसके पता नहीं। तुम्हारे कितने आ जाएंगे? चलो अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। So good morning everyone. I am Vanshika, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8th and I study in Genetic Public School, Salawa, Meerut. There are 14 members in my family, including me. I believe my strength is my attitude. And I like to take up challenges and I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. Thank you. कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कुछ पूछे फिर? I'll ask you something and you will have to answer those questions. ठीक है? Yes. What is your weakness, Vanshika? Sometimes I lost my focus during my studies. This makes me uncomfortable and impatient, but I'm working on it. You're working on it. Yes. Okay. What do you do? I study and I'm a student of class 8 and I study in Genetic Public School. कैसा स्कूल है? This is the best school of our village. बस विलेज का ही है? बस विलेज का ही है? नहीं, वैसे अच्छा है। वैसे अच्छा है। चलो। Which subject do you like the most? English is my most favorite subject. Okay. क्यों करते हो? Why do you like English? English is an interesting subject. When I study English, I feel motivated. Okay. I want to do something big at English. Okay. What is your strength? I considered my habit of working hard to be one of the greatest strengths. Okay. What is the importance of a school in your life? Education is one of the most important tools in a modern society. This is because education enables an individual to transform from an unskilled individual to a highly productive one. School is one of the most important phases in a life of a man. It is a period during which we learn. What are your hobbies? Hobbies play a crucial role in everyone's life. They make us occupied and we do not feel idle. My favorite hobby is watching TV. And what do you want to become, Vanshika? I want to become a professor or bank manager so that I take my family higher. अच्छा, हाई ले जाना चाहते हो अपनी फैमिली को? कितना हाई? So much. So much हाई? मतलब ऐसे देखना पड़ेगा। Vanshika, so you are feeling good by the things that you are doing. Yes. अच्छा लगता है। कितने मेहनत करते हो घर पे? अच्छा, how many hours do you study in a day? I study 3 hours in a day. 3 hours. Okay. अच्छा, tell me something about your father. My father is a farmer and he support me at every stage of my life. He is my strength. Whenever I got lost, he support me. He tell me how to do something right. And he want to make me a good person. Thank you. Okay. About your mother. My mother is a housewife. She is well educated and she also treats me very well and she never scold me. She is also my strength. She teach me how to live life in your own way. Own way. अच्छा, कुछ सलाह दे दो इन 7वीं 8वीं के बच्चों को, कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है, या लाइफ में क्या करना है? मेहनत ऐसी करो कि जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर पाओ। और अपने पेरेंट्स को हमेशा, वो आपके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, उनको ऐसी कोशिश करो कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको आप अच्छे से काम में ला सको। और ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए आप भी सेम ऐसी मेहनत करो।
और ये फेसबुक पे जो देख रहे हैं ये मे बी वही सलाह है, मतलब सेम सलाह। चलो अच्छी बात है। नाउ वी आर गोइंग टू हिना। हिना विल कम हियर एंड विल, तालियां तो नहीं बजवा रहे क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नहीं बजवा रहे भाई, नहीं बजवा रहे भाई, सुन लिया करो। अरे क्लासेस चल रही हैं भाई। हिना, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? आई एम फाइन। यू आर फाइन। तो बुखार रहा पिछले कुछ दिनों में, है ना? यस सर। एंड यू एब्सेंट, फिर आदर्श पे गया वो बुखार यस सर। एंड ही वॉज एब्सेंट। और चलो अच्छी बात है। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। Good morning everyone. I am Hina, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you. थोड़ा लाउडर बोलोगे? Thank you allowing me to introduce myself. I am a student of 8th class and I study in Genetic Public School. There are 5 members in my family including me. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly tests and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. Hina, I am just, wanting to ask some questions right now. Okay, sir. What do you like to do when you're free? I like painting when I am free, and sometimes I help my mother in housework, and I like listening songs, and sometimes I sing song. Tell me something about your best friend. My best friend is Vanshika, and she is this one or that one? Vanshika करा दूं लड़ाई? song. And she is very emotional girl, मतलब innocent, and he helps me in my studies, and I make mistake, she improve me, She improves you, ठीक है, good. and she tells me our discipline, and she asks me some our ये parents, ऐसे बता रही है पूरा। and she is very पूरा अभी और भी बच रहा है, चलो बोलो। and she is very innocent for everything, and Okay. she loves me a lot. Okay, very good. So tell me something about your father. Because your father is very hardworking. Yeah. He works very hard, and he is aware of the things. I would say modern things. He is well educated, and he knows the value of the education. Yeah. So I've known him for last 8, 9, 10 years. So मैंने तो यही देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इस मामले में जागरूक हैं, एजुकेशन के मामले में हाँ. बहुत ज़्यादा हैं। Yes sir. तो वो इतना हार्ड वर्क करते हैं तुम्हारे लिए, आपके लिए, कि दिन रात वो काम करते हैं और उसके बाद में वो डिपॉजिट करते हैं फीस। एंड सो ही इज़ अ लिविंग लाइव, कह सकते हैं ना, मोटिवेशन। Yes, sir. What do you learn from your father? My father is an advocate and also a shopkeeper. He works on my studies, and he always motivated me to get knowledge, and he protects me, all the society and strangers, and I feel very proud to my father. Good. ठीक है। He helps me in education. He worked very hard for me, and he deposits my fees with He works extreme very hard. hard work. Very good. Now I am coming to one question. Yes sir. Which subject do you like the most? English is my most favorite subject. Reason बताओ क्यों है? English is an interesting subject. When I study English, I feel motivated. I want to do something big at English. Okay. Who is your favorite teacher? My favorite teacher is Shruti ma'am. मेरे सामने बैठ के ही। सर आप भी बहुत अच्छे हो। नंबर नहीं दूंगा मैं इंग्लिश में। सर आप भी बहुत अच्छे हो क्योंकि आप अरे हमें अच्छी बात है मोटिवेट ना, करते हो। जो सही है ना, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ।
मैं कम ही लोगों को आता हूँ पसंद। सर नहीं, आप भी अच्छे हैं, लेकिन आप लेकिन आप बुरे हो बस थोड़े नहीं से। सर, अच्छा लेकिन आपके आगे क्या बोलने वाली थी? लेकिन आप खड़ूस टाइप के। नहीं सर, आप बहुत अच्छे हो। आप हमेशा मोटिवेट करते हो हमें। अच्छा मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ। Yes, sir. अच्छा तो फेवरेट क्यों नहीं हुआ? फेवरेट क्यों नहीं हुआ बता? सर आप भी हो। अच्छा क्या है सर? My favorite teacher is Shruti ma'am, and also my favorite teacher is Mr. अब ये तो दीपक दबाव sir. वाली बात हो गई। नहीं सर, दबाव वाले नहीं है। ये तो दबाव वाली है। अगर नहीं। कोई यहाँ पे कोई दूसरा कहेगा अंग्रेजी कहेंगे तो उसे भी कह देगी। उन्हें भी कह देगी, कह नहीं ना, सही नहीं कह रहा हूँ। तो श्रुति मैडम Yes, इज योर sir. फेवरेट। हाँ तो इट्स अ गुड वन ना, बढ़िया है। ओके, कैसी चल रही है पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है। मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल फील कर रहे हो यस सर। या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, आई फील प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जो कोई बच्चा करता है तो ही फेसेस प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स का आना इज़ अ गुड साइन। यस सर। प्रॉब्लम्स आएंगे तभी उनका सॉल्यूशन ढूंढने की आप क्या करते हो? कोशिश करते हो। प्रॉब्लम्स दो ही बच्चों के सामने नहीं आई, दो तरीके के लोगों के सामने। एक वो जो कुछ करता ही नहीं है, उसके सामने क्या करेगी प्रॉब्लम? कुछ कर सकती है उसका? कुछ भी नहीं करेगी प्रॉब्लम। जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक कुछ करता ही नहीं है, बेड पे पड़े रहता है, खाना खा लिया सो गया, उसका प्रॉब्लम क्या बिगाड़ लेगी? एक तो उसके सामने प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा जो जीनियस होता है वो वेल मेंटेन रखता है अपने आप को, वेल डिसिप्लिन, हर चीज़ को वो चाहता है कि मैं 100% रहूँ उसमें, और उस कारण वो हार्ड वर्क बहुत करता है। तो प्रॉब्लम्स उसके सामने भी आते हैं बट उनका नंबर कम हो जाता है। फिर कैसा लग रहा है यहाँ आके? सर आई फील प्राउड। ये यूट्यूब पे जाएगा। ओके सर। ऐसे मजाक वजाक वाला सब कुछ, और ये प्रेशर जो अभी मैंने डाला ना फेवरेट, ये भी जाएगा। प्रेशर नहीं डाला। सर मैंने अपने हार्ट से बोला है आपके लिए। अच्छा हमें फेवरेट टीचर की जब खुशी होगी जब ये बच्चे जो है ना, जब पूरे एरिया को टॉप करेंगे। यस कर सकते हो एरिया को टॉप 9th 10th में जाके? सर आई न्यूज़पेपर में नाम आना चाहिए। आ जाएगा वंशिका? आपका भी तो, मैं तो आपके लिए पूछ रहा हूँ। मतलब एवरीबडी ट्राइज, लेकिन एक दृढ़ निश्चय भी होता है, डिटर्मिनेशन कि नहीं आना ही है। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करते हो अपने हार्ट से बढ़िया तरीके से तो आएगा, है ना? इनके लिए क्या सलाह है सबके लिए? मैं आप सबको यह सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपनी नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दें और डिसिप्लिन में रहें, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का हमेशा रेस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें, और अपने और अगर ये पूछा जाए कि फेवरेट टीचर कौन है तो सर नहीं नहीं सर आप कह रहे प्रेशर नहीं, आपने प्रेशर नहीं डाला। चलो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि 10th के बेसिस पे हम चल रहे हैं। आपका जो सिलेबस चलाया हुआ है वो 10th के बेसिस के कारण है। तो चाहते हैं कि वहाँ पे जाके आप कम से कम पहला जो पढ़ाओ है ना बोर्ड एग्जामिनेशन का 10th क्लास, उसमें आप बेहतर करें ताकि आपको 11वीं 12वीं के लिए एक क्या मिल पाए, एक कॉन्फिडेंस मिल पाए, राइट? और हम तो ये चाहते हैं कि जेनेटिक को मत टॉप करो, आप पूरे के पूरे एरिया के जो स्कूल्स हैं उनको टॉप करो, जेनेटिक अपने आप ही हो जाएगा, राइट? तो थैंक यू करूँ तुम्हारा, अब मतलब एक फॉर्मेलिटी निभाऊँ? थैंक यू फॉर कमिंग हियर हिना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव कम। ऐसे बोलूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ताली बजाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है 4-5 क्लासेज और लगी हुई हैं तो उनको भी डिस्टर्बेंस होगा। यस सर। तो ताली बजाने के लिए आपको संडे में बुलाया जाएगा। आपके इंटरव्यू जब कंडक्ट होंगे तो आराम से उस तरीके से हम कर लेंगे। नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड वन। तीसरा बच्चा कौन आएगा यहाँ पे अपनी मर्जी से? शिवम का हाथ खड़ा है, गौरी का हाथ खड़ा है। कैन आई, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं कैन आई कॉल शिवम, है ना? शिवम को बुला लेते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू यू। वैसे आज ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा डिसीजन लूँ कि मैं शायद संडे में आपको बुलाऊँ 7th 8th को। 9th 10th के साथ तो बहुत सारा हम समय बिताते हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि 7th 8th को हम बुला लें एक बार। ही इज शिवम। शिवम, how are you first of all? I am fine. You are fine. What do you do? I study in 8th class. I study in JNT Public Tell School me in something Salava. about yourself in detail. I am Shivam, born and brought up in आराम से Salava. be comfortable ना, आराम से बैठो। I am Shivam, born and brought up in Salava, Meerut.
अच्छा शिवम, डू यू लाफ समटाइम्स? हंसते भी हो कभी? इसकी हंसी देखी है किसी ने? नो वन हैज सीन येट, अब तक तो नहीं देखी ना। ये हंस के दिखाएगा आज। इन्होंने देखी है, ये क्योंकि पढ़ते नहीं है इसकी हंसी देखते हैं। आज ही हंस रहे थे? अच्छा मजाक चल रहा था, वेरी गुड। हंस के दिखाओ। चलो नाउ यू स्टार्ट और यू रिज्यूम। आप बताओ अपने बारे में। चलो। I am Shivam, born and brought up in Salava, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8th. I study in Janti Public School, Salava, Meerut. There are 5 members in my family, including me. I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way. To move forward, my short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I'll always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. How is your study going on right now? कैसी चल रही है स्टडी? My study is going good right now. गुड, अच्छी बात है। घर पे जब आप फ्री रहते हैं सो साक्षी हेल्प करती है थोड़ी सी? Yes sir. कैसे करती है? जैसे सर हमें मैथ की कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो उनसे पूछ लेते हैं। बता देती है? उनका रिकॉर्ड तोड़ दोगे? सर 10th में? कोशिश करेंगे। दूसरी बार में उसने अच्छा किया था जब वो दिया था ना, एक शायद बैग दी थी उसने साइंस की। साइंस में। कोशिश करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है। कुछ बच्चों पे तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि वो कर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी उस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं जिस लेवल पे उन्हें पढ़ना चाहिए। मेहनत के पैसे आते हैं, आप तो जानते ही हो। Yes sir. पापा मेहनत करते हैं? Yes sir. टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर। My father is a shopkeeper. They support me at every stage of my life. सपोर्ट्स में He support me at every stage of my life. He teaches me the value of discipline. He teach me how to respect your elders. He is the guide. He is like a guiding light who take me to the right path. He is a best father in the world. वेरी गुड। He support me. He is a अच्छा, हु इज योर फेवरेट टीचर? कंफ्यूजन में है किसका नाम लूं। my favorite teacher Sadhna ma'am. ओके, And also Mr. Deepak Song. ये दूसरे नंबर पे मैं आ रहा हूँ बार बार। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरा नाम लो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज। My hobbies is hobby plays a crucial role in everyone's life. They make us occupied and we don't feel idle. My favorite hobby is watching TV. Whenever I have free time, I love watching TV. It never obstructs my life. Hobby teaches us. मैं इतना पनिशमेंट देता हूँ तो फेवरेट टीचर कैसे बनूंगा? ऐसे यही बात है। Hobbies helps us to बात ही नहीं expand कर रहा our है। knowledge. मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी बात है ना। No sir. कहो सर यू पनिश अस एवरी टाइम। कैसे हो सकते हो फिर आप? इतना तो आप भी सोचो। कहो। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? Sir, feeling good. ये तो अचानक ही सेटअप हुआ है और ये देव हमेशा बात करते रहते हैं, आप उसे कुछ सलाह देते हैं। वाई डज देव हमें बात कभी कभी करनी चाहिए, पर जब मैम पढ़ा रही हूँ, सर पढ़ा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल डिसिप्लिन से उनके साथ मैं पढ़ना चाहिए। sometimes it's good to talk, लेकिन whenever your teacher is there और elder is there, तो उस टाइम पे तो बात करने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। It's a kind of a disrespect. देव आप समझ रहे हो? शिवम इज सेइंग अगर यहाँ पर कोई मैम है या टीचर है, कोई पढ़ा रहे हैं ना, सो जस्ट लिसन टू हर और हिम। कुछ मोटिवेशन है इनके लिए? मोटिवेशन तो केवल यही है कि हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। वे हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वे हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो हमें उनके लिए अच्छे काम करने चाहिए। हमें मेहनत से अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे दिन रात एक करके हमारी फ़ीस जमा करते हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात है। नाउ इट्स टाइम फॉर अवनी।
ये मैंने सिखाया तो नहीं है बुलवाने के लिए कि ऐसे ऐसे बोलना है? अच्छा ठीक है फिर तो। लोग सोचते हैं ना सिखा के बैठाए हुए होंगे, सिखाई तो नहीं है मैंने। सो अवनी, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। I am fine, sir. यू आर फाइन। स्टडी कैसी चल रही है? My study is going good. गुड। प्रॉब्लम्स तो आती ही होंगी, तो नंदनी हेल्प कर देती है घर पे बैठ के थोड़ा सा? झूठ नहीं बोलना। Sometimes. Sometimes she helps, sometimes she doesn't. Okay. Now it's time for you to tell us something about yourself in detail. डिटेल में बताओ अपने बारे में। I am Avni, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself in front of you. I am a student of class 7th in Genetic Public School. There are 8 members in my family, included me. I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way. अब आ गया? In a balanced way to move forward. And my short-term goal is to focus on my monthly test to perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. अच्छा, मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहती हो अपने? नहीं, बी कंफर्टेबल, हिंदी में भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। I always make my parents feel proud through my actions. He always support me. Your father? He support me at every stage of my life. Good. He teaches me the time is so important. Good. And the time is one time only in our life. And they teaches us, my brother and my sister, the study is so important. This is in our life one time. हाँ, ये एक ही बार आता है, ठीक है, मौका। Not any time. And my father always work hard for us, my family, for my family. And they always help us to study than anyone work. कोई भी काम हो तो कोई भी काम हो help हेल्प करते हैं। अच्छा, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ, क्या करना पसंद है जब आप फ्री रहते हैं? Whenever I free, I watching TV, I study, listening song, and many things. नंदिनी ऑल्सो लिसन्स टू सॉन्ग्स, और वो तो इंग्लिश के गाने बताती है, कोरिया वोरिया के बताती है आगे। कहाँ है? She likes most. हाँ, उसने उस दिन 2-3 गाने की लाइन सुनाई, वो ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कहा कि ये तो तू अपने उसमें ऐड कर दे अपने स्पीच में, तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आगे की इंग्लिश है। करवाऊंगा उससे, तो वो पसंद करती है उन्हें। कैसे, हेडफोन लगा के सुनती है या लैपटॉप में? लैपटॉप पे सुनती है, तो काफ़ी सुनती है इसका मतलब। 7th क्लास के लिए आपके गोल्स क्या हैं? क्या करना चाहते हो? किस तरीके से आपने स्टडी को डील किया? My goal is to first top in my village. हाँ, Then any other schools, any area of schools. I top my class. Then anyone else. आप इससे सीख रहे हो ना? आप इससे ये सीखो कि शी इज़ ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, इवन दो देर आर मिस्टेक्स, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। बट मैंने इसको ऑप्शन भी दिया है कि आप हिंदी में बोल सकते हो, बट शी जस्ट चूजेज क्या इंग्लिश ही चुनी इसने, तो अच्छी बात है। व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक, एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट? सो आपका गोल ये है कि पहले आप स्कूल को टॉप करना चाहोगे, एंड आफ्टर दैट जो एरिया के स्कूल से मोटिवेशन है कुछ इन बच्चों के लिए, क्या करें, कैसे करें? So motivation is only one. School, this is our school and always our temple. Because they teaches us how we studied, and they always motivated us. Our teacher is so motivate us and teach us how you achieve a goal in your life. Achieve your goal in your life. So please
take somebody is talking, मतलब मैंने कहने के बावजूद भी. so please make a discipline in our school ठीक and है. your class. और कुछ थॉट है, कुछ इस तरीके का थॉट ऑफ द डे होता है ना, कुछ है ऐसा मन में जो विचार है जिसे आप सामने रखना चाहते हो? Thought of the day is you are not change your habits, but you change your future through your actions and your studies. Improve your studies and your habits. कैसा लगा यहाँ पे आके? I feel proud. यू फील प्राउड. और ये पहली बार आए हो आप, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 6, 7, 8 बार में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. देखोगे इसे जाके यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा. पापा को दिखाओगे, मम्मी को दिखाओगे, अगली बार इम्प्रूवमेंट के साथ, है ना? Yes, sir. चलो, कौन नेक्स्ट? कौन? अरे वो दोनों हाथ नहीं उठा रहे. चलो गोरी आ जाएगी. कनिष्का नहीं आना नहीं है. अवनी हैज डन गुड एंड राधा विल. नहीं, वो तो पता नहीं है किसको बुलाया जाएगा, बट यू मस्ट रेज योर हैंड्स. ठीक है. गोरी, हाउ आर यू? I am आर यू good. फीलिंग गुड? Yes, sir. अभी 3-4 दिन पहले तबीयत खराब थी, Yes, sir. अभी ठीक है. ओके. सो गोरी, आई विल टॉक टू यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, समथिंग अबाउट योर फैमिली, Yes, sir. and something about your education. So first of all, you have to tell me something about yourself in detail. I am Gori, born and brought up at Salawa, Meerut, and I am very feel too proud to introduce myself at this moment. I am a student of class 8 and I study in Gigantic Public School. There are 4 members in my family, and my short-term goal is to focus on my monthly test to perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents and teachers feel proud through my actions filled with extreme hard work. And I always challenge myself to improve my progress and strength. That's all about me. And now I want to tell you about my family. My family, I belong to a middle class family, and my family members help me at every stage of my life. And my family make sacrifices for me, and I want to do something at high level for my family. And now I want to tell you about my hobbies. My hobby is playing cricket, and my hobby is watching TV. घबरा तो नहीं रही है? आराम से बैठ, आराम से बैठ. नाउ बी कंफर्टेबल. आई विल आस्क यू समथिंग, यू आंसर, आई आस्क, यू आंसर. ठीक है? बी कंफर्टेबल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड मेक एन आई कॉन्टैक्ट, या तो इनके साथ में या कैमरा पे देखो, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, गोरी? I considered my habit to working hard to be one of my greatest strength. Okay. Which is your favorite subject? My favorite subject is civics. Why? Because I want to be an IPS officer in my future, and civics is one of the most important subject for prepare UPSC. भाई वाह. So I like civics the most. IPS ऑफिसर बनना है? Yes, sir. पकड़ के ले जाओगे हमें? मजाक कर रहा हूँ. मतलब जब बन जाएगी तो पकड़ के तो नहीं ले जाएगी यहाँ से? No, sir. कि चलो यहाँ से बहुत पनिशमेंट No, दिया sir. है. Whenever you are free at your home, what do you like to do? I like to help my mother in housework, and I also help my youngers
like my brother, sister, and I play cricket. You play cricket as well? Yes, sir. You bat or ball? Yes, sir. दोनों? बॉलिंग भी फेंक लेते हो? हाँ. और बैटिंग भी? सब बैटिंग इतनी अच्छी नहीं होती पर बॉलिंग बॉलिंग फेंकते हो? फास्ट या स्पिन? स्पिन. स्पिन, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन? ये पता नहीं होगा अभी? नहीं पता. और ये भी पता है? चलो बढ़िया है। फीलिंग के बारे में बताओ, यहाँ पे बैठ के कैसा फील हो रहा है बच्चों के सामने? I feel so proud and I am thank you for my teacher who take me a great chance to motivate you, and I also feel so proud. ये ऐसे होते हैं बच्चे। स्टूडेंट में से कोई और आना चाहेगा? एक बड़े स्टूडेंट को बुला लें आज, बड़े स्टूडेंट को बुला लें। तो बड़े स्टूडेंट को बुला लें आज। तो वंशिका कुछ इंटरव्यू लेना है उनका? आप आ जाओ मेरी सीट पर, आ जाओ अमरीश। आप बैठ जाओ, पहले वहाँ पे बुलाएगी, पहले बुलाएगी बुलाएगी बुलाएगी। बैठ जा उस वाले ऊंची वाली चेयर पे, बुलाओ। So now I want to call on this occasion our respected sir, Mr. Amrish sir. So please. So first of all, I want to say thank you to our principal sir. He gave us our precious time. So now I want to ask some questions. So which class is your favorite class? देखो बहुत ही टफ सा एक क्वेश्चन है मेरे लिए। तो सभी क्लासें जो हमारे स्कूल में हैं वो सभी अच्छी हैं और सभी बच्चे मतलब रेस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स का जैसे करना चाहिए। तो सभी क्लासें अच्छी हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है जो जिसे मैं अच्छा ऐसे कह दूं। अगर हम व्यवहार की बात करते हैं, देखो व्यवहार देखो सभी का अलग अलग होता है। अगर हम 4 बच्चों की कंपेयर करते हैं तो 4 बच्चों में सभी बच्चे अपने अपने, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कुछ और क्वालिटी होती है। ऐसे ही हर क्लास में अलग अलग तरीके की क्वालिटी। कोई तो पढ़ने में बहुत होशियार है, कुछ रेस्पेक्ट करने में बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। सबका फील्ड अलग अलग है। आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में मेरे से पूछते हैं तो मैं फिर बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत टफ है कि कौन सी क्लास सबसे अच्छी है। This is unique answer. So my next question is this कि आप दीपक सर के बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैं अपने व्यक्तिगत मेरा मानना है कि दीपक जी मुझे मतलब लगभग मैं आपको अगर बताऊं लगभग 12 साल पहले मेरी मुलाकात दीपक जी से हुई। इनकी एज भी उस टाइम कम ही रही होगी। तो मैंने पाया उस टाइम ही, मैं उनसे सीनियर था लेकिन मैंने पाया शुरुआत में ही पाया। अब तो मैं देखता ही हूँ, आप भी देखते होंगे, बहुत मेहनती एक व्यक्ति हैं और मतलब जो भी उन्हें काम मिलता है, जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे अगर पेरेंट्स से उन्हें मीटिंग करनी है, चाहे किसी भी फील्ड में वो काम करते हैं। अगर किसी काम को उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उसे पूरे मन से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं। कोई भी मतलब उसमें कोई लापरवाही की तो गुंजाइश होती नहीं है। और अगर मैं बात करूं, बच्चों के साथ उनका पूरा लगाव है। वे चाहते हैं कि जेनेटिक के बच्चे हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा मतलब अपने फील्ड में जहाँ भी वो जाते हैं वो हमारा जो क्योंकि हम उनके साथ मेहनत करते हैं, हम उन्हें शिक्षित करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, तो वे जहाँ भी जाएं वो टीचर्स का नाम रोशन करें। और मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि ऐसे व्यक्ति इतने मेहनती, इतने परिश्रमी, इतने एजुकेटेड, इतने मतलब प्रखर वक्ता
वो बहुत कम लोग होते हैं। अब बहुत सारी क्वालिटी हैं, अगर गिनाना शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरे आंसू निकल गए। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो वास्तव में मेहनती है। नहीं, ये कोई रोने और हंसने वाली बात नहीं है। जो मैं देखता हूं, जो मैं फील करता हूं, वो बात मैंने यहाँ पे बताई है। चलो वंशिका। वैसे तो दीपक सर को हम सभी जानते हैं, जो भी कहा है बिल्कुल सच है। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आप हम सब लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए? मोटिवेट तो मतलब रोज़ाना हम चाहते हैं कि हमारे वर्ड से नहीं, हमारे एक्शन से ही बच्चे मोटिवेट हो। जैसे काम हम करते हैं, बच्चे कोशिश करें कि वो भी, मतलब मैं टीचर तो नहीं कहूँगा, वो जो भी बने अपनी लाइफ में, लेकिन मतलब जो हमारे अंदर क्वालिटी है, एक बच्चा सीखता है अपने टीचर से भी। जो भी टीचर्स उसे पढ़ाने आते हैं, वो उनके जो भी मतलब व्यक्तित्व है, जो भी उनके गुण हैं, उनसे सीखता है। तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि एक तो सभी बच्चे हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अभी आपको कठिन परिस्थिति का असली मतलब नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कठिन परिस्थितियाँ भी जीवन में आती हैं, आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जो हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो उन डिफ़िकल्टीज़ के जो टाइम है, उसमें हमें एक तो मेहनत कभी करना नहीं भूलना है। दूसरी बात, हमें हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में, जो जिस समय आपको चारों तरफ अंधेरा चमकता है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, आप अकेले होते हैं, क्योंकि आपने ऐसे काम वहाँ पर किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सभी लोग आपसे अलग हो जाते हैं। उस समय आपका परिश्रम और आपका जो माइंड है, जो आपके काम करने की जो टेक्निक है, वो आपकी मदद करेगी। एक तरीके से मैं कहूँगा, आपकी एजुकेशन आपकी मदद करेगी। तो एजुकेशन सही तरीके से अपने आप को एजुकेट करिए, चीज़ों को सीखिए, ईमानदारी का गुण अपने अंदर रखिए, और सभी चीज़ें मेरे ख्याल से आपके जीवन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब हमारा ये जो हमारा स्कूल खुला, जेनेटिक पब्लिक स्कूल की जो ब्रांच खुली, इसके बारे में जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है? आपने किस उद्देश्य से खोला था? देखो, मैं 2013 के आसपास की बात रही होगी। दीपक जी ने उस समय वहाँ पे स्कूल छोड़ दिया था सूरजमल में, इनकी क्योंकि नौकरी लग गई थी, सरकारी नौकरी इनकी लगी। मैं वहाँ काम करता था, दोनों हम क्योंकि घुल मिल गए थे, दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, दोस्त बन गए थे एक तरीके से। तो एक दिन मेरे पास कॉल आता है दीपक जी का। दीपक जी मुझे बताते हैं, एक्चुअल में वो मुझे वहीं बुला लेते हैं जहाँ वो काम करते थे। मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी और इनकी लगभग 1.5-2 घंटे बात होती है कि कुछ ना कुछ हमें करना है, हमें यहीं नहीं रुकना है। तो वो दिन मेरे आज भी याद है। मतलब शुरुआत में मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, मैं भी उस टाइम टेंशन नहीं लेना चाहता था। एक ठीक ठाक नौकरी थी, दीपक जी की भी और मेरी भी। मतलब उस तरीके से, एक तरीके से मेरे मन में भी एक क्वेश्चन मार्क तो था ही कि कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने होने चाहिए थे स्कूल चलाने के लिए। बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता, वर्क फोर्स चाहिए होती है, ज़मीन चाहिए होती, बहुत सारी चीज़ें मतलब स्कूल के लिए चाहिए होती हैं। वो उनमें से मतलब इनमें से कोई, बस हमारे पास एक मेहनत थी, काम करने का जज्बा था। हमारे पास इनमें से कोई चीज़ नहीं थी, ना पैसे हमारे पास थे, ना ज़मीन हमारे पास थी, ना मतलब बच्चे हमारे पास थे। ऐसे नहीं कि हमारे से बच्चे जुड़े हुए थे। ट्यूशन भी मतलब ऐसा कोई ख़ास नहीं। सलावा के बच्चों को मैं तो कम जानता ही था, दीपक जी हालांकि जानते थे, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हमें हमारा जो शुरुआत से ही जो लक्ष्य रहा है, ये रहा है कि हम गाँव के बच्चों को भी आगे ले जाएं। हमारा हमेशा से ही ये मानना रहा है, यही बात हमारे माइंड में थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जनवरी या फरवरी का महीना था 2014 का, हम दोनों यहाँ पे सलावा में आए। ये तो यहीं रहते थे, मैं आया इनके साथ। और फरवरी 2014 से हमने लोगों के पास जाना शुरू किया, एडमिशन के बारे में बात करना शुरू किया। तो लोग वास्तव में एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम से
जो पुराने स्कूल से जहाँ भी बच्चे पढ़ते थे उनसे थोड़ा थोड़ा मतलब सहमत नहीं थे। तो जैसे हम उनके पास गए, जैसे माना, लोगों ने माना कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारी मेंटलिटी को उन्होंने जाना, जो हम बात उनके सामने रखते थे, तो लोगों ने हमारे ऊपर हमने केवल 100-150 बच्चों की प्लानिंग करी थी पहले साल में। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, कम से कम 300-350 के बीच में मुझे एक्चुअल स्ट्रेंथ 320 शायद रहे होंगे। तो इतने बच्चे हमारे पास पहले साल में हुए। तो मतलब विचार तो देखो, हर आदमी कुछ ना कुछ सपने देखता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है उन सपनों को सही करने के लिए काम करना, ठीक है। उसके लिए कॉन्टिन्यूसली प्लानिंग करना। अगर आप इस तरीके से काम करोगे अपनी लाइफ में, तो मेरे विचार से चीज़ें सही हो जाएंगी। सो बस मैं यही पूछना चाहती थी। नहीं, ये तो पूछना चाहती थी, जब ये खुला था तो तुम कितनी से थी, तुम तो बताओ। मैं तो बहुत ही छोटी। कितनी बड़ी थी 2014 में, बताओ। मैं 3-4 साल की थी। तो तब एडमिशन हुआ होगा नर्सरी में। तो कैसा लग रहा है भाई, कितनी सी बच्ची तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है, मतलब 9 साल? एक मतलब एक यूनिक सा एक प्रोग्राम है, ऐसा बहुत कम होता है। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वंशिका जैसा बच्चा मेरे इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ। मैं वंशिका को हमेशा आशीर्वाद दूंगा कि ऐसे कामों में जो बढ़ चढ़ करके भाग लेती है, हमेशा ऐसे ही करती रहे। और मुझे तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ आप लास्ट क्वेश्चन है, इनसे पूछो कि कुछ मोटिवेट करो, लेकिन हंसने के साथ। हाँ। थोड़ा सा कॉमेडी में मोटिवेशन। हाँ। पूछो। आप हमें कॉमेडी के साथ कुछ मोटिवेट करो। कॉमेडी के साथ मोटिवेशन तो यही है भाई, जब भी हमें मौका मिलता है, दीपक जी को मतलब बहुत सीरियस मोड भी चलता रहता है। और दीपक जी मतलब बहुत सीरियस मोड में बात चल रही है, स्कूल के सिलसिले में या क्लास के किसी पर्टिकुलर के बात चलती है, लेकिन दीपक जी का एक ऐसा मतलब वहाँ पे जवाब आता है सीरियस मोड पे कि मुझे इतनी ज़्यादा हंसी छूट जाती है जिसकी कोई हद नहीं होती। ये हमारे मतलब अपने पर्सनल, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आप लोग नहीं होते, जब हम दोनों ही होते हैं ना, तो सीरियस मोड में भी इतना मतलब मजाकिया मूड कर देते हैं ये, जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, दीपक जी कर देते हैं। क्लास में भी कभी कभी आपने फील करा होगा। Who is your favorite teacher? अब बता। हिला बताओ। बताइए ना, जल्दी बता। फेवरेट टीचर तो श्रुति मैडम, मैं इन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। फेवरेट टीचर इज श्रुति मैडम, बट आई लाइक यू एज वेल, आई लाइक अमृत। और मैं प्रेशर में नहीं कह रही है ना, ये तो कहेगी। हाँ, एक और बुलाओ, पास में बुलाओ यार। मतलब जब नंबर आएगा ना, तो अकेले रहेंगे हम जरूर पूछेंगे भाई हम क्यों नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी वो है, हाँ, इतना ज़्यादा पनिश कर दूं तो मैं तो हो ही नहीं सकता। चलो भाई, बढ़िया है। सब ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आने का प्रयास करो सारे। वैसे रैप अप कर दो भाई पूरे, बताओ इन्हें किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, कोई अचानक क्यों, बताओ। ये जो आज इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। ये एक तरीके से एक सरप्राइज़ जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो भी आया उसने अपना 100% देने की कोशिश की। अब ये जो इंटरव्यू वगैरह का जो सेशन चल रहा है, उसमें सिर्फ हम ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारे टीचर, खासकर दीपक सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सब उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि अगर सपोज़ करते हैं, अगर मैं और ये सब बच्चे कहीं और पढ़ते तो कोई और टीचर इतनी मेहनत नहीं करता। आप हमें एक फैमिली मेम्बर की तरह सपोर्ट कर रहे हो, सो उसके लिए थैंक यू। चलो बढ़िया हो गया, सही हो गया।